So good afternoon, everyone. Hi, how are you all? I hope you all are fine at your places. Since you all know that we are doing chapter number 6, right? And we're gonna continue the same chapter today. So as usual, I'm gonna share my PPT. So let's open up the PPT, and here I go. I hope my screen is visible on your screen as well. So here I go. Where is your PPT? Okay, so let's open up the. So we are doing chapter number 6, the challenges of culture diversity. This is your chapter number 6. Okay. So challenges of culture diversity, chapter number 6. So when we talk about diversity, then diversity is not understood as inequalities. Diversity is understood as differences. And we need to embrace, we need to accept these differences. And in India, there is humongous culture diversity, and we all know that. We are diverse on the basis of many things: language, region, caste, there are certain things. Then race, religion, sect, language. Obviously, there are a lot of things that gives rise to your culture diversity, right? And in the last classes that I took with you, we also understood that how culture diversity presents tough challenges, right? It's not so easy to govern. It's not so easy to run a government. It's not so easy to smoothly, sail through the times when a country has a lot of culture diversity. It's not at all difficult. Culture diversity is very tough. It's extremely difficult. It's extremely, hard to manage, people that belong to different identities, right? Because of their culture, because of the lots of obviously diversity. So culture diversity present tough challenges. I've already discussed a lot about all these things. Okay, so this is a question that comes out, that how culture diversity present tough challenges, or why does culture diversity present tough challenge, give reasons. So there are, certain reasons. Okay, so then I've already discussed all these things. Okay, now what is community identity? Remember that culture is kind of a, what is culture? Culture is a way of life. Culture has certain rules, regulations, custom, tradition, values that individuals follow, right? And community identity is something that gives identity to to a community, right? And I've discussed this as well in the previous classes, that how community identity is formed and what is community identity, right? Simply identity of a community, identity of a group of people who have we feeling among them. We feeling means they have kind of we feeling, they belong to a certain group, maybe because of their caste, maybe because of the language that they speak, maybe because of the, tribe, similar tribe they belong, maybe because of the same race they belong. And there are different things, that, you know bring people close to each other, and there is a we feeling, right? Whenever there is a we feeling in a group, that gives that gives rise to a community and community identity. How it is formed? It is formed out of community, and you will easily understand once you will go through these slides, once you will read all these things. Okay, I've already discussed this as well. Okay, so until then, mm, this is your challenges that comes out of culture diversity. That's the reason the name of the chapter is challenges of culture diversity. There are a lot of challenges that we can understand further in this chapter. And remember that this chapter has the highest weightage as far as your exams are concerned. This chapter is actually of 8 marks, and all the chapters are 6 or of 6 marks, but this is a kind of chapter that has the highest share in your marks. It has got 8 marks, if I'm not wrong.
right? So this is a very important chapter, and this chapter is lengthy as well. Okay, so that's the reason you need to understand everything very clearly and be alert in the class. Show some attentiveness in the class, and that's definitely going to help you to understand many things. That's definitely going to help you to get good understanding of this chapter. Okay, so I've already discussed the challenges that comes out of cultural diversity, or cultural diversity presents tough challenges, and then this is a kind of a question through which you can understand. Okay, so then what is community, how it is, how community identity, or how is it formed? We understood that as well. Okay, and then okay, so now today we're going to start from nation state, or nation state, or state, nation state. So these all are very important things that you need to understand. Look, today we're going to understand few things, like we're going to understand nation, we're going to understand state, we're going to understand nation state, we're going to understand certain policies, to build national identity. जैसे एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी होती है, वैसे ही एक नेशन की भी एक आइडेंटिटी होती है. We're going to understand that as well. So nation state, nation state, we're going to understand two policies: assimilation, policy of assimilation, policy of integration. We're going to understand that, and eventually we're going to understand that we should accept the culture diversity. अगर हम culture diversity को accept करेंगे अच्छी तरह से, वही एक reason है, वही एक is a kind of a key that can help us to avoid the challenges जो हम face करते हैं. Different riots होते हैं, different protest होती हैं, certain violent disturbances होती हैं country में. क्यों होती है? वो इसलिए होती है because of the culture diversity. और अगर हम culture diversity को accept नहीं करेंगे और एक certain section of the society dominate करके रखेगी पूरी nation को, तो कहीं ना कहीं culture diversity होगी. So we will understand nation state, then nation state, and then policy of assimilation, policy of integration, and then eventually we're going to understand that we should accept the culture diversity. We're going to understand all these things, right, in this session. Okay, so starting with the nation state. Nation, obviously. Look, whenever any lay person uses this word nation, तो कहीं ना कहीं उस particular person को कभी भी idea नहीं होता है कि nation क्या होता है. We often use all these terms, instead of, each other. We interchangeably use all these terms. जहाँ पे nation, कहीं पे हम nation बोल देते हैं, कहीं पे हम state बोल देते हैं, कहीं पे हम nation state बोल देते हैं ना. तो we kind of, what we do, we interchangeably used all these terms. बट कहीं ना कहीं अगर हमें आइडिया हो जाएगा कि नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, इन कॉन्क्रीट सेंस, इन स्पेसिफिक सेंस, इन क्लियर सेंस, इन कोहेरेंट सेंस, जब हमें एक आइडिया हो जाएगा, देन वी विल डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड कि नेशन पर्टिकुलरली होता क्या है और स्टेट पर्टिकुलरली होती क्या है. एंड दैट्स द रीजन वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो नेशन. अब नेशन क्या होता है? रिमेंबर दैट nation is a sort of large scale community. It is a community of communities. Now what do you mean by this? नेशन एक लार्ज स्केल कम्युनिटी होती है. अब कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी किसी भी बेसिस पे हो सकती है. लाइक कम्युनिटी कास्ट के बेस पे हो सकती है, कम्युनिटी लैंग्वेज के बेस पे हो सकती है, कम्युनिटी एक कॉमन कल्चर के थ्रू हो सकती है. एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन इफ पीपल आर शेयरिंग, उसकी वजह से कम्युनिटी क्रिएट हो सकती है. लाइक सदर्न स्टेट्स, जहाँ पे हमारे तमिलनाडु, कर्नाटका, उनमें एक वी फीलिंग है कि वी बिलोंग टू सर्दर्न इंडिया. और समवेयर नॉर्दर्न पीपल जो नॉर्दर्न स्टेट को बिलोंग करते हैं, उनके बीच में एक आइडिया है कि वी बिलोंग टू सर्दर्न, वी बिलोंग टू नॉर्दर्न जोन ऑफ आवर कंट्री, राइट. सो कहीं ना कहीं नेशन क्या होता है? अ नेशन, लुक, दीज things are not so easy to understand. You not only need to understand it, you need to actually feel it, what I'm telling you, right? So nation is a sort of large scale community. जब हम एक सिंपल एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं कि पीपल हु स्पीक पंजाबी, they are residing, they are living in a particular region. So कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी है, बट कहीं ना कहीं जब वहां पे और डायमेंशंस भी ऐड हो जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं लार्ज स्केल कम्युनिटी. सो नेशन इज अ सॉर्ट ऑफ लार्ज स्केल कम्युनिटी. अब इसका एग्जांपल क्या है? यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आवर नेशन. जब हम कहते हैं कि इंडिया, हम कहते हैं ना कि वी बिलोंग टू दिस नेशन, वी बिलोंग टू दैट नेशन, इंडिया इज आवर नेशन, वी नीड टू डू गुड थिंग्स फॉर आवर नेशन. सो कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, और जब हम उस कम्युनिटीज को, बहुत सारी कम्युनिटीज को एक सिंगल
फॉर्म में देखते हैं तो हम बोलते हैं इट इज अ लार्ज स्केल कम्युनिटी. आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग. जब हम इंडिया को, सपोज यू आर लुकिंग एट इंडिया, है ना, अब स्पेस आउट ऑफ इंडिया आप आ गए हो, है ना, तो अब नीचे से स्पेस से आप इंडिया को देख रहे हो, तो यू आर लुकिंग एट इंडिया. आप इंडिया को बोल रहे हो कि इंडिया इज अ लार्ज स्केल कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज है. दैट्स द रीजन. लुक एट द नेक्स्ट लाइन. इट इज अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी. सो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जब बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं उसको हम नेशन कहते हैं. या कम्युनिटीज से जब एक कम्युनिटी को हम एक अपने पर्सपेक्टिव से एक उसको एज अ यूनियन देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेशन. सो आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग. अ नेशन इज अ सॉर्ट ऑफ लार्ज. लुक, आपको ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज further in the chapter you're going to use these terms to understand further concepts. So kahin na kahin you really need to understand all these things. That's why I'm emphasizing a lot on each and every word that I'm telling you or reading for you. Okay, so a nation is a sort of large scale community. एक बहुत large scale community है, या इसको हम बोल सकते हैं it is a community of communities. एक particular community जिसमें बहुत सारी community है. That's the reason we are saying it is a community of communities. Okay, so members of a nation share the desire to be part of the same political collectivity. This desire for political unity usually expresses itself as the aspiration to form a state. Look, I've given you the example of India. India is a nation, right? बहुत सारी communities, and that's the reason we can say that India is a community of communities, right? और कहीं ना कहीं जो एक particular nation को belong करती हैं सारी communities या एक community, वो हमेशा चाहते हैं कि वो एक state बनाए. Look, मैं अभी state पे नहीं आया हूँ. I'm still telling you the community nation, right? So कहीं ना कहीं उनमें एक desire होती है वो इंडिविजुअल्स में कि वो एक स्टेट बनाए, राइट? वो एक स्टेट बनाए. और स्टेट कैसे बनेगी? जब हम स्टेट को समझेंगे कि स्टेट होती क्या है. सो लुक एट दैट. मेंबर्स ऑफ अ नेशन, जो एक मेंबर्स ऑफ अ नेशन है, जितने भी मेंबर्स हैं एक नेशन में, वो एक डिजायर शेयर करते हैं. दे शेयर द डिजायर. उनमें एक फीलिंग्स होती हैं कि वो एक पॉलिटिकल कलेक्टिविटी, एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बने, राइट? तो उनमें एक डिजायर होती है. दिस डिजायर फॉर पॉलिटिकल यूनिटी यूजुअली एक्सप्रेस इटसेल्फ एज एस्पिरेशन टू फॉर्म अ स्टेट. तो कहीं ना कहीं वो एस्पायर करते हैं, कहीं ना कहीं वो डिजायर करते हैं कि एक स्टेट फॉर्म हो, हम एक कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर आ जाएं. तो जब हम बोलते हैं कि कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर आ जाए, तो तब हम स्टेट की बात करते हैं. अब हम समझेंगे स्टेट क्या होती है. नाउ लुक, अगर आप अपनी बुक से समझोगे, मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड right through your textbook, but I have made it in an easy way. Okay, now the term state refers to a body or structure जिसको हम entity भी कह सकते हैं. In your textbook it is written that entity, but entity को हम body या structure भी कह सकते हैं. So the term state refers to a body or structure जिसको हम entity भी कह सकते हैं. यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे आप, the state refers to an entity या body or structure consisting of at least 4 characteristics. Look, जब भी एक पर्टिकुलर एरिया में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो दैट गिव्स राइज टू योर स्टेट. अब कौन कौन सी स्टेट कैसे बनती है? जब हम स्टेट की बात करते हैं तब स्टेट में एक टेरिटरी होती है, मींस एक जोग्राफिकल रीजन होता है, राइट? एक जोग्राफिकल रीजन, एक टेरिटरी होती है. दूसरा ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो होगी. थर्ड गवर्नमेंट होती है. लुक, जब हम नेशन की बात कर रहे थे तब गवर्नमेंट वर्ड नहीं आया था. जब हम स्टेट की बात करते हैं तब गवर्नमेंट वर्ड आ गया. इसका मतलब गवर्नमेंट होना जरूरी है, तभी उसको हम पॉलिटिकल सिस्टम बोलेंगे. अदरवाइज वी वोंट एबल टू कॉल इट पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? सो टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेनिटी? सोवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर. अब सुप्रीम पावर किसकी? सुप्रीम पावर गवर्नमेंट की. सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नमेंट की. सुप्रीम पावर गवर्नमेंट की, सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नमेंट की, ऑब्वियसली. ओके, सो 4 कैरेक्टरिस्टिक जब एक पर्टिकुलर बॉडी या स्ट्रक्चर या एंटिटी में होगी, उसको हम स्टेट कहेंगे. नाउ आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड नेशन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड स्टेट एज वेल, राइट? अब मैक्स वेबर क्या कहते हैं स्टेट के बारे में? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज जनरली आस्क्ड 2 मार्क्स क्वेश्चन कि मार्क्स क्या कहते हैं स्टेट को, वो कैसे डिफाइन करते हैं. कार्ल मार्क्स, not Karl Marx, but Max Weber. Who is Max Weber? Max Weber is German sociologist. He belongs to Germany, right? So Max Weber is a German sociologist जो state को कैसे define करते हैं. State is a body that successfully claims a monopoly of legitimate force in a particular territory. अब यहाँ पे एक word है monopoly. Now what do you mean by monopoly? Monopoly means exclusive possession or exclusive
ओनरशिप और एक्सक्लूसिव पोसेशन और एक्सक्लूसिव ओनरशिप, किस चीज की एक्सक्लूसिव ओनरशिप, किस चीज की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, एक फोर्स की। अब जब जो हमारी गवर्नमेंट होती है, यू कैन सिंपली टेक एन एग्जांपल, जब हमारी गवर्नमेंट होती है वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्टन लॉज हमारे स्टेट पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाते हैं। वो क्यों लाते हैं? क्योंकि स्टेट के पास एक मोनोपोली होती है, एक एक्सक्लूसिव पावर होती है जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही होती है। क्या एक जो पावर स्टेट के पास होती है, स्टेट यहाँ पे मैं आई एम टेलिंग यू गवर्नमेंट, जो एक पावर गवर्नमेंट के पास होती है, क्या वो पावर सबके पास होती है? जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, क्या जो स्टेट के पास पावर होती है वो सब, वो जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है, क्या वो स्टेट के, वो सब ग्रुप्स के पास पावर होती है? नहीं, वो एक पावर सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि स्टेट एक बॉडी है जो सक्सेसफुली क्लेम करती है मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट पावर इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। यहाँ पे जो मैक्स वेबर हैं वो बॉडी 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 किस बॉडी का मतलब उनके उन व्हाट ही मींस बाय बॉडी, ही मींस दैट बॉडी एक गवर्नमेंट है जिसके पास एक पावर है, लेजिटिमेट पावर है, मींस उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, और वो पावर कहाँ पे? एक पर्टिकुलर टेरिटरी में है। तो इसका मतलब वो एक गवर्नमेंट होती है, राइट? So कहीं ना कहीं आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नेशन, व्हाट इज स्टेट, एंड देन मैक्स वेबर क्या कहते हैं स्टेट को डिफाइन करते टाइम, राइट? सो राइट, जब हम कहते हैं इंडिया इज अ नेशन, तब कहीं ना कहीं हम स्टेट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, तब हम इंडिया को एज अ नेशन देखते हैं कि इंडिया इज अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, एक लार्ज स्केल कम्युनिटी है, बहुत लार्ज स्केल कम्युनिटी मीन्स मैसिव ह्यूमंगस कम्युनिटी है इंडिया, और एक कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज है क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स है यहाँ पे। तब हम स्टेट को उस तरह, अपनी कंट्री को, अपने इंडिया को उस तरह देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट? और कहीं ना कहीं नेशन हमेशा स्टेट बनाने के माइंड में रहता है, उनके हमेशा एक पर्सपेक्टिव और एस्पिरेशन होती है स्टेट में। और स्टेट क्या होती है? स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये चार चीजें, और मैक्स वेबर कहते हैं स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट पावर इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। कहीं ना कहीं मैक्स वेबर इज ट्राइंग टू से दैट गवर्नमेंट होती है एक बॉडी, और इसलिए हम why I sometimes or many people sometimes say that state is doing that, state is doing that, state का मतलब वहां पे होता है कि गवर्नमेंट, राइट? गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोस लॉज, सो उसका मतलब ये होता है, राइट? सो कहीं ना कहीं मैक्स वेबर कहते हैं बॉडी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिसके पास एक मोनोपोली होती है, एक्सक्लूसिव राइट होता है, सिर्फ एक्सक्लूसिव उन्हीं के पास होता है, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव राइट एंड एक्सक्लूसिव पोसेशन, किसकी? पावर की, जो एक लेजिटिमेट पावर है। लेजिटिमेट पावर मींस जो लॉज के अकॉर्डिंगली पावर है, ना कि एक कहीं ना कहीं अनलॉफुल नहीं है, लेजिटिमेट पावर है, राइट? इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, दैट्स व्हाट स्टेट इज ऑल अबाउट। ओके, so kindly text me if you have understood what is nation and what is state. Kindly text me. Look, we have got very limited time. Archita, yes sir. Saurabh, yes. And what about Anayata? What about Mandeep, Preet, and then Urvi? Tell me, since we have got very limited time, you should understand what I'm telling you. Understand it. Why I'm focusing a lot and saying that we have got limited time. So shall I move further? Tell me, shall I move further? Okay. So now we have understood. Okay. So now we have understood nation, we have understood state, right? Okay. So let's move further. Okay. Look, it's very easy to define a state.
हम स्टेट को डिफाइन बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता के हम बोल सकते हैं स्टेट इज अ वेरी इजी थिंग टू डिफाइन, राइट? But remember that nation is not so easy to define. Nation is very hard to define. We can easily describe a nation, but it's very hard to define a nation. Nation को हम describe कर सकते हैं. क्यों describe कर सकते हैं? जब भी हम कोई चीज को describe करते हैं, we don't have to become specific about the things. हम किसी भी चीज की description दे सकते हैं. But जब हम define की बात करते हैं, तो हमें certain थिंग्स को केयरफुली डिफाइन करना होता है. तो हम नेशन को, रिमेंबर दैट, नेशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नेशन बिकॉज नेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज आ जाती हैं, और जब बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज आ जाती है तब नेशन को डिफाइन करना इजी नहीं होता. नेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिफाइन. डिस्क्राइब तो हम कर सकते हैं बट डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू स्टेट, राइट? और यही है आपकी नेक्स्ट स्लाइड में. लुक एट दैट. नेशन, फिर से नेशन आ गया. क्यों नेशन आया? क्योंकि नेशन पे ही तो पूरा चैप्टर बेस है. नेशन पे ही तो पूरा चैप्टर बेस है. कल्चर डाइवर्सिटी कहाँ से आ रही है? नेशन से आ रही है. बहुत सारी हमारे डिफरेंट जो हमारे वेज ऑफ कल्चर हैं, या बहुत सारे लाइफस्टाइल्स हैं, या बहुत सारे आई वुड से कल्चर हैं, या कस्टम ट्रेडिशंस हैं, या जिस बेसिस पे भी नेशन बना है, वो सारी डाइवर्सिटी कहाँ से आ रही है? नेशन से ही आ रही है. इसलिए नेशन फिर से वापस आ गया, राइट? तो नेशन की ये फॉर्म समझना बहुत जरूरी है, राइट? Nation. A nation is a peculiar sort of community. What do you mean by peculiar? Peculiar means unique, a very unusual sort of community that is easy to describe but hard to define. अब इस चीज को ध्यान से देखो. ध्यान से means बहुत ज्यादा ध्यान से. Nation को describe करना is very easy as compared to define करना. Define करना बहुत मुश्किल है nation को. But look at that. Why is it difficult to define the nation? नेशन को डिफाइन करना क्यों मुश्किल है? अब हम समझेंगे क्यों नेशन को इतनी इजीली हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? अब डिफाइन और डिस्क्राइब का क्या मतलब है? जब आपकी सर्टेन, आप जब आप एग्जाम्स लिखते हो, अपने एग्जाम्स देते हो, अपने एग्जाम्स, तब जब आपको डेफिनेशन लिखने की बात आती है, डिस्क्राइब तो हम किसी भी चीज को कर लेते हैं, क्योंकि डिस्क्राइब जो है हमारी डिस्क्रिप्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है. जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन को बोलेंगे कि डिस्क्राइब करो नेशन को, सो मे बी एक पर्टिकुलर पर्सन कहेगा कि नेशन इज बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज है, या कॉमन हिस्ट्री है लोगों की, या कॉमन देयर कास्ट है, या कॉमन देयर कल्चरल वैल्यूज है, उसकी वजह से नेशन डिस्क्राइब हो रहा है. तो एक पर्टिकुलर पर्सन जब नेशन को डिस्क्राइब करेगा, क्या पता वो लैंग्वेज के बेसिस पे करे, और दूसरा इंसान जब इंडिविजुअल जब नेशन को डिफाइन करेगा, क्या पता वो कास्ट के बेसिस पे करे. थर्ड इंडिविजुअल जब नेशन को डिस्क्राइब करेगा तो कहीं ना कहीं क्या पता वो सर्टेन जोग्राफिकल रीजन के बेसिस पे करे कि हम नॉर्थ इंडिया के हैं, वो साउथ इंडिया के हैं, राइट? सो डिस्क्राइब करना तो बहुत ईजी है बट डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब हम चीजों को डिफाइन करते हैं तब हम बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक चीजों को लिखना पड़ता है. जब आप एग्जाम्स अपने लिखते हो तब कोई भी चीज को डिफाइन करना तो हम उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. क्यों रखते हैं? कि वो एक स्पेसिफिक चीज होती है जिसको हम जो वेरी नहीं करते हैं. डिस्क्रिप्शन हमारी वेरी हो सकती है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल नेशन को दूसरी तरह डिफाइन कर रहा है, एक इंडिविजुअल नेशन को दूसरी तरह डिफाइन कर रहा है, तीसरा और दूसरी तरह डिफाइन कर रहा है, राइट? बट कहीं ना कहीं जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब हम डिफाइन की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी हार्ड. सो ओके, सो कहीं ना कहीं हम क्या समझेंगे? व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द नेशन? मेनी नेशंस आर फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चरल, historical and political institutions like the shared religion, language, ethnicity, history, or regional culture, but it is hard to come up with any defining features, any characteristics that a nation must possess. Now, what do you mean by this? अब जब हम नेशन को डिफाइन करते हैं, मे बी हम नेशन को डिफाइन कर रहे हैं, लोगों का सिमिलर कल्चर है, उस बेसिस पे नेशन बना है. मे बी लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम है. जैसे हम कहते हैं कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम है. अब जो लोग इंडिया में रह रहे हैं वो सब कहते हैं कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम है. कैसे? क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तब हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक रेस के इंडिविजुअल्स ने अपने एफर्ट्स लगाए थे टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. तो कहीं ना कहीं हमारी कॉमन हिस्ट्री है. जब हम अपनी स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में बात करते हैं, जब हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, तब वहां पर हर एक कास्ट का, हर एक रिलीजन के इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने एक एफर्ट लगाया अपना
इंडिया को फ्री करने के लिए, राइट? सो कहीं ना कहीं वो होता है हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जब हम समझते हैं। ये कॉमन कल्चर मीन सेम कल्चर है, वो लैंग्वेज के बेस, वो रिलीजन के बेस पे भी हो सकता है, कास्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, राइट? और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मीन कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है एक पर्टिकुलर नेशन में। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि वहां पर मोनार्की सिस्टम है, जहां मोनार्की सिस्टम मींस किंग रूल कर रहा है, व्हेन पावर इज देयर इन द हैंड्स ऑफ किंग, उसको मोनार्की सिस्टम कहते हैं, ठीक है? या वहां पर रिपब्लिक सिस्टम है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। सो कहीं ना कहीं रिपब्लिकन कंट्री हैं हम इंडिया, और कहीं पे किंग्स होते हैं, लाइक सऊदी अरेबिया में किंग होते हैं, ओमान में किंग होते हैं, सो बहुत सारी कंट्रीज में किंग होते हैं। सो हमारा कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, राइट? वो भी एक पर्टिकुलर नेशन को हम डिफाइन करने के लिए बोलते हैं, राइट? कि और रिलीजन के बेस पे, कल्चर, एथनिसिटी, हिस्टोरिकल रीजन, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इन सब बेसिस की वजह से हमारा नेशन इज बना है। बट जब हम डिफाइन करने की बात करते हैं तब हम पर्टिकुलर, हम स्पेसिफिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते हैं जैसे हम स्टेट में बताते हैं। लुक एट द स्टेट में हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी की वजह से स्टेट बनती है, बट कहीं ना कहीं नेशन के पर्टिकुलर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक बताना इज नॉट सो इजी, राइट? क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी निकल के आती है जब हम नेशन की बात करते हैं। नाउ देयर आर मेनी नेशंस। अब यहाँ पर दो लाइंस हैं, बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, सेकंड और थर्ड पॉइंट। और कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स ऑपोजिट है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट है। देखो, देयर आर मेनी नेशंस दैट डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी एंड सो ऑन। अब इंडिया का एग्जांपल ले लो, क्या इंडिया में एक ही लैंग्वेज है? क्या इंडिया में सब हिंदी ही बोलते हैं? नहीं, इंडिया में बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है। 1634 और 32 लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, और ये तो सिर्फ जो नॉर्मल लैंग्वेजेस है, मदर टंग है, और अदरवाइज अनरजिस्टर्ड भी बहुत सारी है, राइट? सो कहीं ना कहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन है इंडिया में, बहुत सारी एथनिसिटी मींस डिफरेंट ट्राइबल पीपल हैं, और सो ऑन। बट कहीं ना कहीं तब भी हम नेशन ही बना रहे हैं, है ना? नेशन हमारा तब भी बन गया इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, एक सिंगल लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी ना होने के बावजूद भी हमने नेशन बना लिया, क्योंकि हम कहते हैं इंडिया इज अ नेशन। बट कहीं ना कहीं जब हम दूसरी जगह समझते हैं, ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन, एथनिसिटीज दैट आर यूजुअली that are used across nations, but they cannot make a single unified nation. For example, all English speakers. Now, what do you mean by this? अब देखो, जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, स्पेन, पोर्टुगल, your Switzerland, then Ireland, Netherlands. अब देखो, आयरलैंड में people use English, Netherlands में people use English, England में people use English, right? Switzerland में people use English, right? But कहीं ना कहीं फिर भी दे आर डिफरेंट, कहीं ना कहीं फिर भी दे आर नॉट यूनाइटेड, कहीं ना कहीं फिर भी हम उनको एक नेशन नहीं कहते हैं, कहीं ना कहीं देयर इज अ डिवीजन। तो कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड पॉइंट में हमें ये समझ आती है कि नेशन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सिंगल लैंग्वेज, रिलीजन और कॉमन चीजों के ना होने के बाद भी इंडिया ने एक नेशन बना लिया। बट कहीं ना कहीं सारे इंग्लिश स्पीकर्स एक ही नेशन में रहते हैं? क्या सारे इंग्लिश स्पीकर्स एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं? नहीं, इंग्लिश स्पीकर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है नेशन को डिफाइन करना, राइट? कहीं डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एक नेशन बना देते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के होने के बाद भी नेशन बन जाता है, जैसे इंडिया। और कहीं ना कहीं सिमिलर फीचर या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद भी नेशन नहीं बनता है, जैसे इंग्लिश स्पीकर्स, राइट? Thus, we can say that a nation is a peculiar sort of community that is easy to describe but hard to define, right? So ये था आपका क्वेश्चन, राइट? ओके, so this is what nation or difficulty to define nation is all about, right? These are the 4 points. I'm sure you have understood this. Okay, so first point में हमने क्या बताया कि certain things होते हैं on the basis of nation बन सकता है, और second point में हमने कहा कि कॉमन ना होने के बावजूद भी नेशन बन गया, और थर्ड में हमने बताया कि सिमिलैरिटी होने के बाद भी नेशन नहीं बना, और इवेंचुअली हमने बोल दिया कि इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नेशन, राइट? Okay, so now you have understood, now you have understood nation, you have understood state, and we have also understood that it is very difficult to define a nation. We have understood this as well. So we have understood 3 things. Now अब एक न्यू वर्ड निकल के आता है जिसको हम कहते हैं नेशन और स्टेट। लुक, नेशन और स्टेट कंबाइन हो चुके हैं, अब इसको हम समझेंगे कैसे कंबाइन हो चुके हैं। हाउ आर नेशन एंड स्टेट रिलेटेड इन अ मॉडर्न सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ है? मॉडर्न सोसाइटीज में या मॉडर्न एरा में, इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, नेशन और स्टेट
रिलेट करने स्टार्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। भी समझेंगे कैसे रिलेशन है। रिलेशन ऑफ नेशन एंड स्टेट इन मॉडर्न सोसाइटी। ओके, सो नेशंस आर कम्युनिटीज दैट हैव अ स्टेट ऑफ देयर ओन। अब लुक एट दैट, मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि जब नेशन हमेशा एस्पायर करता है, उनमें हमेशा एक एस्पिरेशन होती है, एक डिजायर होती है टू फॉर्म अ स्टेट। वो हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम हमें मिल जाए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जब एक नेशन को पॉलिटिकल सिस्टम मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, राइट। क्योंकि नेशन तो था ही था, एक स्टेट भी आ गया, एक पॉलिटिकल सिस्टम भी आ गया, राइट। कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल सिस्टम में जो गवर्नमेंट है उसके पास एक पावर भी है, सुप्रीम पावर, जिसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं, राइट। ओके, look, I'm explaining everything in a very clear terms. I'm not, I'm trying कि आप सबको सब कुछ समझ आए. That's the reason I'm, emphasizing a lot on all the things that I'm telling you, right? Okay. Okay. So nations are communities that have a state of their own. ये वो नेशन की बात करें, जैसे हम कहते हैं इंडिया इज अ नेशन। यहाँ पर नेशन ने अपनी एक स्टेट एस्टेब्लिश कर ली है, क्योंकि हम नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। नेशन ने एक अपनी स्टेट फॉर्म आ गई है, क्योंकि काइंड ऑफ गवर्नमेंट आ चुकी है एक नेशन में। सो नेशन आर द कम्युनिटीज दैट हैव अ स्टेट ऑफ देयर ओन, राइट। स्टेट में जब गवर्नमेंट एंटर हो जाती है और एक इलेक्शंस होते हैं और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें होने स्टार्ट हो जाती है, राइट। और एक फोर्स होती है गवर्नमेंट के हाथ में। There is one-to-one bond between nation and state. One nation, one state, or one state or one nation. This is also very easy. Okay. So कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनने स्टार्ट हो गया, एक वन टू वन बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया नेशन और स्टेट के बीच में, राइट। ओके, सो okay, so this is what happens. Okay, so in short, it can be said that it is a community that has succeeded in acquiring a state of its own. जब हम नेशनल स्टेट को इकट्ठा समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी जो थी या एक जो नेशन था वो सक्सीड हो चुके हैं, उनको सक्सेस मिल चुका है एक स्टेट बनाने में, अपनी एक स्टेट बनाने में, राइट। नाउ व्हाट इज नेशन स्टेट? अब ये सारी चीजें समझने के बाद देयर इज अ क्वेश्चन दैट कम्स आउट, व्हाट इज नेशन स्टेट? इट रेफर्स टू कल्चरल ग्रुप। ऑब्वियसली कल्चरल ग्रुप है, जब हम नेशन की बात करें वहां पे कल्चर है, क्योंकि नेशन की जब हम बात कर रहे हैं दैट इज अ कम्युनिटी, और जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो एक कम्युनिटी का ऑलवेज कल्चर होता है और उसको हम कल्चरल ग्रुप कहते हैं। सो इट रेफर्स टू कल्चर ग्रुप। नेशन स्टेट कंप्लीट को मैं आई एम डिफाइनिंग इट, इट रेफर्स टू कल्चर ग्रुप दैट लिव्स इन अ that lives within a political system willingly. It is a particular type of state which is characteristics of the modern world. Look at that, जब हम स्टार्ट किया था ये स्लाइड समझना, वहां पे लिखा था मॉडर्न सोसाइटी में रिलेशन नेशन और स्टेट का क्या होता है। इसका मतलब मॉडर्न सोसाइटीज में ही ये कंसेप्ट आया है नेशन और स्टेट का, जब नेशन और स्टेट इकट्ठे हो गए। क्योंकि जो नेशन होता था, जो एक कम्युनिटी होती थी, लार्ज स्केल कम्युनिटी होती थी, वहां पे एक गवर्नमेंट भी आ चुकी है, राइट। सो इसलिए हम कहते हैं कल्चरल ग्रुप। व्हाई आई एम सेइंग कल्चरल ग्रुप? आई एम सेइंग कल्चरल ग्रुप क्योंकि कल्चरल ग्रुप कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी से आया है, और कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक नेशन होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था नेशन, आई टोल्ड यू दैट नेशन इज अ लार्ज स्केल कम्युनिटी। सो नेशन मींस कम्युनिटी, कम्युनिटी में से कल्चर निकल के आता है, इसलिए हम नेशन और स्टेट को कहते हैं कल्चरल ग्रुप, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर रह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट आ चुकी है और विलिंगली रह रहा है, ना कि जबरदस्ती फोर्सफुली उनको रखा जा रहा है। विलिंगली रह रहा है, क्योंकि मैंने कहा नेशन हमेशा एस्पायर करती है, डिजायर करती है एक गवर्नमेंट को, राइट। सो दिस इज व्हाट नेशन एंड स्टेट इज ऑल अबाउट। आई एम श्योर नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नेशन, व्हाट इज स्टेट। नाउ व्हाट इज नेशन एंड स्टेट, राइट? ओके. Okay, so look at that. A nation is a group of people who see themselves as a cohesive and coherent unit based on shared culture or historical criteria. So nation तो obviously एक historical और culture एक उनके foundation होती है, वहाँ से एक nation निकल के आता है. Nation are socially constructed unit, not given by nature, right? A nation state is the idea of homogeneous nation governed by our sovereign state, own sovereign state. Sovereign state means एक particular government जिसके पास supreme power है, which each state contains one nation. Okay, so basically this is what nation state is all about. Okay. Look, now what you need to understand here is that I've already told you that it's not so easy. It's not so easy to have culture diversity in a nation. It is not at all so easy to have a culture diversity in a nation. हमेशा government
fear में रहती है हमेशा. Government is always in a fear कि culture diversity will give rise to violence, it will give rise to riots, right? होते रहते हैं हमारी कंट्री में. क्यों होते हैं? Because lot of culture diversity is there. और कहीं ना कहीं ये एक threat है, कहीं ना कहीं ये एक 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 कहीं ना कहीं फियर है स्टेट्स के माइंड में, स्टेट्स में, गवर्नमेंट के माइंड्स में कि हम कैसे कल्चर डाइवर्सिटी को होल्ड करके रखेंगे और सबको इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे. अदरवाइज इनइक्वालिटीज अगर ज्यादा क्रिएट होगी तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे राइट्स होंगे और होते हैं, राइट. ओके, सो थ्रेटन्ड बाय कम्युनिटी आइडेंटिटीज, states try to eliminate culture diversity. अब क्या होता है? I told you that we're gonna understand nation. We have understood this. I'm gonna teach you state and then nation state. अब एक concept आता है policies का. A policy of assimilation और policy of integration. दो policies होती हैं. Maybe we'll understand nation of policy and nation of obviously policy of integration and policy of assimilation in the next class, right? Because I'm just left with 2 minutes, right? 2 odd minutes. So we'll understand that. और क्यों policy रहती है? We'll continue the same class, but just remember that क्यों एक स्टेट में एक फियर रहता है, क्योंकि कल्चर डाइवर्सिटी बहुत सारी है, इसलिए स्टेट के माइंड में हमेशा रहता है कि वो कुछ सर्टेन पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, सर्टेन थिंग्स को अडॉप्ट करें जिसकी वजह से वो कल्चर डाइवर्सिटी के साथ डील कर पाए. रिमेंबर दैट डील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. क्योंकि अगर एक स्टेट कल्चर डाइवर्सिटी के साथ डील नहीं कर पाई, क्योंकि एक नेशन था, नेशन से स्टेट बना, नेशन स्टेट हो गया, जब गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट के पास बहुत चैलेंजेस है, बहुत टफ चैलेंजेस है कि कल्चर डाइवर्सिटी को कैसे कंट्रोल करके रखना है. इसलिए गवर्नमेंट ऑलवेज कम्स विद द पॉलिसीज, जैसे पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन और पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टेट को, राइट? So we'll understand all these things in the next class. Okay, so kindly text me if understood what I have tried to make you understand till now in this class. Kindly text me. I should stop share here. So kindly text me and tell me, have you understood nation? Have you understood nation state? Have you understood your nation state? Okay, it is not so easy to understand, right? Nation state and nation state, right? So that's the reason I'm telling you to focus in the class and try to understand everything, right? It's not, you got to feel it as well. जो भी मैं आप सबको समझा रहा हूँ, otherwise it will not so easy to understand all these things, and nobody will explain you all these things in such a way. I guarantee you this particular thing. I'm recording the lecture, and on record I'm telling you that nobody is going to explain you all these difficult terms, nation state in such an easy way. Nobody is going to do that. Okay, so that's the reason I always told you to remain vigilant in the class, right? Otherwise you won't able to understand anything, right? कुछ भी समझ नहीं आएगा, right? Okay, so time has come to say you goodbye. Until then, take care all, stay safe, stay at home, and God bless you all. Bye bye, and utilize your time. Okay, so bye bye everyone. Bye bye.